Bismillahirrahmanirrahim. My name is Zair Ali and currently I'm working as project coordinator at PASA HealthNet Eco Pakistan. With me is Mr. Haris. Uh, I would like to hand over the mic to Dr. Asad if he have few words to speak. Assalamu alaikum, everybody. I welcome all of you for this session of case-based discussion. I can see Dr. Ali, are you with us? Can you hear me? आप muted हैं, Dr. Ali Haider. आप अभी भी muted हैं. जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम जी. Yes, we can hear you now. So good. और डॉक्टर बुशरा आप सुन सकती हैं आप? जी डॉक्टर असद, I can hear you. Excellent. Thank you very much for being with us today. We have this session on case-based discussion, or as before, it will remain interactive. उज़ैर, आपके पास कितने cases हैं आज? Sir, मेरे पास दो cases हैं. The first one is by Dr. Sultan Ahmed Chandiyu, but it would be presented by Dr. Oj, and second one would also be presented by Dr. Oj. ठीक है, okay. So I think we should start now. हमें time मिल जाएगा. Dr. Oj, आप can you start your presentation? Yes, sir. Uzair bhai, can you share the case, please? Large कर दें Uzair. Dr. Oj, can you see the screen? Yes, Uzair bhai, I can see the screen. The first case is regarding a 30-year female patient, housewife by occupation, visited my clinic with complaint of joint pain for 7 months, which is bilateral symmetrical and involving small joints of hand with features of synovitis. On basis of history examination and investigations, she was diagnosed as a case of rheumatoid arthritis. I wanted to put her on steroids and hydroxychloroquine and methotrexate, but basic reports were as follows. The RA factor was positive, HB was 7.5, WBC were 6.2, platelets were 310, ESR was 94 millimeter per hour, and LFTs showed bilirubin was 0.8, ALT 67, alkaline phosphatase was 200, and AST 28. Serum creatinine was 0.9, anti-HCV was non-reactive, HBS antigen was reactive, and anti-HDV was non-reactive. HBV DNA quantitative was not detected, and HBE antigen was negative. Ultrasound abdomen showed increased echogenicity of liver parenchyma, suggested fatty liver disease. The questions are, does she need any further investigations, and discuss use of DMRDs in this sort of cases? Thank you, Dr. Oj. Before I invite the faculty, just let me summarize this case. This is about, Bushra, I would like to go to you first. This is about a young female housewife with rheumatoid arthritis. And the consideration is for steroids, hydroxychloroquine, and methotrexate. She is anemic. RA factor is positive. She is seropositive rheumatoid arthritis. ESR is high. ALT is 67. And we can see she is surface antigen positive. Hepatitis B DNA is negative, it's not detected. Delta virus is negative, E antigen is negative, and ultrasound is suggestive of fatty liver disease. We don't have weight or BMI of this patient available to us. So how would you like to proceed with this case with the given information, Dr. Bushra?
Thank you, Dr. Asad. She basically needs to be worked up for her anemia. Uh, check her iron and TIBC levels, serum ferritin, vitamin B12, and folic acid levels. The MCV is not given here, but she certainly needs to be worked up. A menstrual history has not been mentioned, and a woman of reproductive age probably has a gynecological reason behind this anemia. And then bleeding from other sources also comes in, but this certainly needs to be investigated, including an endoscopy if required, depending on a detailed gynecological and GI history of maybe rectal bleeding or menorrhagia. Secondly, she's not a candidate for treatment for hepatitis B, but I would like to rule out here whether she has antibodies against hepatitis B or not, and whether or not there's no alpha fetoprotein that has been mentioned. This, although I can accept that the ultrasound was done by a reliable sonologist and there is no SOL in the liver, although it has not been mentioned. I must mention here that this woman who is hepatitis B surface antigen positive, she's a housewife, which means she's married, uh, have her husband and her children been screened and vaccinated against hepatitis B or not if it was found to be negative. The EPI program includes vaccination against hepatitis B, so the children's vaccination cards should be looked into in detail. For now, these are the investigations that I would do, but the of primary importance is a workup for her anemia. A rheumatologist certainly needs to be consulted here because they have a separate set of investigations, which includes RA factor, RA factor is mentioned here, anti-CCP levels, CRP, and that's how they monitor the response to treatment. Dr. Asad? Ji, thank you. To summarize what Dr. Bushra has said, we need to work up for the anemia. Family counseling is important, and of course, if possible, which is usually in bigger centers anyway, so we need to involve a rheumatologist. Dr. Ali Haider, the case is in front of you. इसमें जो treatment है steroids और hydroxychloroquine और methotrexate, आप इनको किस तरह से लेंगे one by one in this scenario in individual medicine को? I'm talking about safety of these medicines in a person with hepatitis B surface antigen positive. जी थैंक यू डॉक्टर असद। इसमें एक चीज में आपके क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज में ऐड करना चाहूँ डॉक्टर बुशरा की इजाज़त से। जहां ये केस है एक्टिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस with anemia and with surface antigen positive case, other markers are negative except ALT is a 67. So does she need other investigation में I would like to add कि इसका जो है फाइब्रोस्कैन लिवर भी होना चाहिए, जिसमें हमें क्योंकि active rheumatoid arthritis, we have to put on the medication to treat the primary disease. So, and these drugs have effect on liver as well. So, उसके लिए fibroscan liver, maybe someone may advise liver biopsy as a primary tool to rule out concomitant other conditions, specifically when NASH, if you keep in mind non-alcoholic steatohepatitis, BMI का पता नहीं है इस केस में, but 67 ALT है या autoimmune disease इनको already एक है, तो concomitant other conditions को, और अगर हम methotrexate दे रहे हैं तो हमें एक baseline investigation का होना जरूरी है। और इसके अलावा जो डिस्कस यूज ऑफ DMRDs इन दिस शॉर्ट केस, अगर इसमें हम देखें कि सरफेस एंटीजन पॉजिटिव ALT 67 जो है DNA B DNA नेगेटिव E एंटीजन नेगेटिव
we put this patient on steroid, hydroxychloroquine, methotrexate. इन मेडिसिन का इफेक्ट है इम्यूनिटी पे, ये इम्यूनिटी को इम्पेयर करते हैं। जब ये इम्यूनिटी को इम्पेयर करेंगे तो रीएक्टिवेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी का चांस इस केस में ज्यादा है, क्योंकि रेमेटॉइड आर्थराइटिस एक लॉन्ग रन डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है, तो डेफिनेटली पेशेंट को भी जो है लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन इम्यूनोसप्रेशन, ये स्टीरॉइड्स या मिथोट्रेक्सेट देने की जरूरत पड़ेगी। तो हेपेटाइटिस बी के रीएक्टिवेशन के चांसेस इस केस में ज्यादा है। जब हम इन पेशेंट्स को कैटेगराइज करते हैं कि ये पेशेंट के जो है कीमोथेरापी पे या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो हम इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक है हाई रिस्क ग्रुप, दूसरा है मॉडरेट रिस्क ग्रुप और तीसरा है लो रिस्क ग्रुप। जो हाई रिस्क ग्रुप है उसमें मोर देन 10% चांसेस होते हैं रीएक्टिवेशन के, हेपेटाइटिस बी रीएक्टिवेशन के। मॉडरेट में 1 to 10%, लो रिस्क में लेस देन 1% है। जो मॉडरेट रिस्क वाले केसेस हैं उनमें आप सिस्टमिक कीमोथेरापी के एंटी कैंसर ड्रग्स दें या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दें हाई रिस्क में। मॉडरेट में अगर आप स्टीरॉयड देना चाहते हैं और वो 20 मिलीग्राम या उससे ज्यादा है या 4 वीक्स या उससे ज्यादा है, या इसके साथ आप टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स लाइक इमाटिनिब है वो देना चाहते हैं, और तो वो मॉडरेट रिस्क में आ जाते हैं। और लो रिस्क ग्रुप में जो है जहां आप मोनोथेरापी दें इम्यूनोसप्रेसिव के, लाइक आप मिथोट्रेक्सेट का जहां यहाँ नेम लिखा हुआ है स्टीरॉयड का, तो ये मोनोथेरापी अगर दें तो वो लो रिस्क में आ जाते हैं। हमारे केस में हमें लॉन्ग टर्म के लिए देना है स्टीरॉयड मिथोट्रेक्सेट, तो ये डेफिनेटली स्टीरॉयड भी लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें दे सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में मॉडरेट रिस्क ग्रुप में जो है वो फॉल करेंगे। जहां मॉडरेट रिस्क ग्रुप में फॉल करेंगे तो आप पर्टिकुलरली ये जो केस है ये हमारा सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, तो इसमें हम प्रोफाइलेक्टिकली एंटी HBV ट्रीटमेंट रिकमेंड करेंगे गाइडलाइंस के मुताबिक। जो इस ग्रुप में एंटी वायरल थेरापी है वो हम TDF भी दे सकते हैं, एंटी कवर भी दे सकते हैं, या टैफ भी जो है वो दे सकते हैं। क्योंकि रेमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रॉनिक डिजीज है, उसमें हमें लॉन्ग टर्म के लिए ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देनी पड़ेंगी। मुमकिन है हमें 2 ड्रग्स ये स्टीरॉइड्स और मिथोट्रेक्सेट लॉन्ग टर्म के लिए देनी पड़ेंगी। तो वी हैव टू ट्रीट स्टार्ट एंटीवायरल थेरापी इन दिस केस, और उसके साथ हम पीरियडिकली मॉनिटर करते रहेंगे। जी Thank you, Dr. Ali. So, very nicely elaborated, mild, moderate and high risk group. इसमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो मिथोट्रेक्सेट है यूजुअली हम इसके साथ वैसे भी अनकंफर्टेबल होते हैं। अगर हेपेटाइटिस बी ना भी हो तो ALT ज्यादा हो तो यूजुअली, क्योंकि मिथोट्रेक्सेट का अपना भी फाइब्रोसिस होता है, तो यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल। Dr. Bushra, I would like to rope you in here. आप काफी काम करते रहे हैं क्लोजली, आपका जो डिपार्टमेंट है फाता मेमोरियल में विद रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट, और आई एम श्योर ये आपके लिए एक नया केस नहीं है, तो आप थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे कि आप लोग और रूमेटोलॉजिस्ट के क्या व्यूज होते हैं, क्या कंसर्न्स होते हैं और आपके क्या कंसर्न्स होते हैं इस पर्टिकुलर केस में। जी जी, एक तो जैसे डॉक्टर अली हैदर ने कहा है कि वो फर्दर चाहेंगे फाइब्रो स्कैन करवा लें या लिवर बायोप्सी उस सूरत में भी हेल्पफुल होगी, क्योंकि ALT रेज्ड है, हेपेटाइटिस बी DNA नेगेटिव है, शी ऑलरेडी हैज़ 1 autoimmune condition, autoimmune hepatitis will have to be ruled
आउट। अभी अगर इस वक्त नहीं करते, क्योंकि फुल बैटरी ऑफ टेस्ट हम नहीं करते हैं एक ही गो में, बट एट अ लेटर स्टेज वी माइट नीड टू गो इन एंड गेट इट डन। जो दूसरी ट्रीटमेंट वाली बात है वो जो माइल्ड मॉडरेट हाई रिस्क वाले केसेस तो डॉक्टर अली हैदर ने बता दिए हैं। यूजुअली जो हमारा वी हैव अ robust rheumatology department at Fatima Memorial. Over here, they do not go beyond 10 milligrams of steroids as maintenance therapy for their SLE or rheumatoid arthritis. तो इसलिए वो वाला risk of reactivation तो नहीं होता, वो तो they stay at less than 10 milligrams. Methotrexate की आपकी बात बिल्कुल ठीक है. Methotrexate as a policy, which is not clearly written in their guidelines nor in ours, they do not give a hepatotoxic DMARD in the presence of a concurrent chronic hepatitis of any cause. Hepatitis C तो खैर treatable है अब, लेकिन hepatitis B हो या autoimmune condition हो या चाहे fatty liver ही हो, they avoid methotrexate. They have a whole lot of other choices to make. तीसरा ये है कि इस पेशेंट को in patients who do not respond very well to rheumatoid arthritis, to do DMARDs and they have rheumatoid arthritis, biologics का बहुत ज़्यादा trend है, etanercept and जो adalimumab है, they are very commonly used in the rheumatology department in Fatima Memorial Hospital. और वो फिर हमारे पास भेजते हैं, और ये केस इस वक्त तो कैंडिडेट फॉर ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जैसे डॉक्टर अली ने कहा ये केस उस वक्त प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट के लिए हो जाएगा इफ़ दे गो फॉर रिटुक्सीमैब स्पेशली, या फिर बाकी जो मैंने मेंशन किए हैं एम्ब्रेल जो एटेनरसेप्ट है या एडालिमुमैब के नाम से जो आती है, एडालिमुमैब जो होती है, तो उस केस में स्पेशली रिटुक्सीमैब viral serology now, then keep an eye on the hepatitis B surface antigen, hepatitis B DNA titers and ALT every 3 months for up to 18 months after stopping rituximab. Rituximab का खास precaution है, and you start the patient on tenofovir outright. अब जैसे ही उन्होंने प्लान किया है बायोलॉजिक्स आपको दे देना है टेनोफोविर, मैं ऐसे पेशेंट्स को TDF नहीं देती, मैं टैफ देती हूँ, because they are already prone towards osteoporosis. Long term इनके steroids at least 5 milligrams पर तो होने ही होते हैं, so I prefer to give TAF to them. There are a lot of cases that rheumatology and gastroenterology have managed together in this way. And for rituximab it has to be, वो गाइडलाइंस में लिखा हुआ है ACG की, लेकिन जो रिटुक्सीमैब है उसमें ट्रीटमेंट 18 मंथ्स आफ्टर द स्टॉपिंग बायोलॉजिक्स है, जैसे जो एटेनरसेप्ट है उसका 6 मंथ्स आफ्टर स्टॉपिंग इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स है, तो वो ज़रा थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ता है. आई थिंक इट शुड बी लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ स्पेशलिस्ट्स. Thank you, Dr. Bushra. We are now open to questions. Any comments or question for the audience? Dr. Ali Haider is here, Bushra is here. I can see Daud Gilzai's name here. Any question related to this particular case? ये आप लोग देखते भी हैं. Any comment from the participants? सर ये जो है ना, इसमें डॉक्टर बुशरा ने जैसे बताया कि anti-HBs इसका टेस्ट होना चाहिए, क्या anti-HBs के साथ anti-HBC कोर एंटीजन जो है IgM वो नहीं होना चाहिए? वो नहीं मेंशन किया गया. नहीं, मैंने anti-HBE एंटीबॉडी मेंशन किया था. anti-HBs का इस केस में कोई एप्लीकेशन नहीं है, बिकॉज़ शी हैज हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव. anti-HBC की बात कर रहा हूं मैं. डॉक्टर अनवर बुड्ढा साहब ये कह रहे हैं बुशरा के anti-HBE के साथ एक जो कोर IgG या IgM बारे में बता दें, जो हेपेटाइटिस बी कोर होता है, IgG या IgM ये नहीं होना चाहिए? नहीं,
उस केस का इस टेस्ट का इस केस में कोई फर्दर आप एप्लीकेशन नहीं है ना। जो कोर IgG है वो आपको पास्ट इन्फेक्शन बताता है और कोर IgM करंट इन्फेक्शन बताता है, लेकिन उस करंट या पास्ट इन्फेक्शन का हमारे पास एविडेंस हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिविटी है। इस केस में हम एक्यूट हेपेटाइटिस बी तो सस्पेक्ट नहीं कर रहे कि हम anti-HB कोर IgM करवाएं जो विंडो पीरियड के लिए होता है। तो इसलिए नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस केस में इस वाले टेस्ट की ज़रूरत है। हाँ, हेपेटाइटिस बी की एंटीबॉडी चेक होनी ज़रूरी है ताकि आप उसकी सीरो कन्वर्जन एट अ लेटर डेट पिक कर सकें। इसमें आप डॉक्टर अनवर भुट्टा ये भी जहन में रखें कि बाज़ औक़ात एक मैं सिचुएशन, एक बात ऐड करना चाहूंगा। जी करें। अगर थ्योरेटिकली आप देखें तो जब भी आपने इम्यूनोसप्रेसिव या कीमोथेरेपी स्टार्ट करनी है किसी भी हेपेटाइटिस बी रिलेटेड पेशेंट में, तो आपने सरफेस एंटीजन हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन करवाया और anti-HBC टोटल या IgG आप एडवाइज कर देते हैं। हमें जो सिनारियो मिला हुआ है तो दो ग्रुप बन जाते हैं। एक ग्रुप है जिसमें है सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है और anti-HBC नेगेटिव है। दूसरा ग्रुप है जिनमें सरफेस एंटीजन नेगेटिव है, anti-HBC टोटल या IgG पॉजिटिव है। हमें जो सिनारियो अभी दिखाया गया है इसमें ऑलरेडी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, तो ये हमारा जो कीमोथेरेपी के हिसाब से या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स स्टार्ट करने के हिसाब से जो हमें सिनारियो है वो उसमें सरफेस एंटीजन पॉजिटिव केस है। तो लिहाजा एकेडमिकली थ्योरेटिकली आप देखें तो ठीक है, anti-HBC टोटल या IgG आप करवा लें। अगर इस केस में आप नहीं भी करवाते तो कोई इश्यू नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जैसे डॉक्टर बुशरा ने कहा। अगर सरफेस एंटीजन नेगेटिव होता तो उस सूरत में आप anti-HBC भी करवाते बिफोर स्टार्टिंग जो है कीमोथेरेपी और इम्यूनोसप्रेशन, मगर इसमें सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है लिहाजा जरूरत नहीं है anti-HBC की। थैंक यू। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट? आप अनम्यूट कर। कुछ बोलो। जी दाऊद प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर। Well elaborated and well explained question by Dr. Bushra and Dr. Ali Adar from both hepatology and rheumatology point of view. तो इसमें बहुत अच्छी तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। आई थिंक इसमें मेरी तरफ से किसी क्वेश्चन की वो नहीं रह जाती। वैसे बहुत अच्छी तरह ये अली अदर तो वैसे मेरे उस्ताद भी हैं और काफ़ी जगहों पे इन्होंने मुझे पढ़ाया है। डॉक्टर बुशरा भी ऐसे ही है। दे वेल डिजर्व पर्सनालिटीज एंड वेल इलैबोरेटेड क्वेश्चंस सर। थैंक यू दाऊद। मैं इसमें सिर्फ ये चीज़ एक और ऐड करना चाहूँगा जो हमारे कोलीग्स प्राइमरी केयर में हैं। आई एम श्योर आपके पास ये केसेस आते हैं हेपेटाइटिस बी के विद ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिनको स्टीरॉइड्स चाहिए, जिनको डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स चाहिए। जस्ट बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आपको हेपेटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना चाहिए, जो भी आपके नियरेस्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, और उनसे भी, और हम लोग एज ए रूटीन रूमेटोलॉजिस्ट को जरूर इन्वॉल्व करते हैं। फॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसा सिनारियो नहीं है कि हमारे पास इजीली ये कंसल्टेंट्स अवेलेबल हो जाते हैं और पेशेंट को काउंसल करते हैं और मरीज भी ये बात मानते हैं, क्योंकि हम किसी ऐसी सिचुएशन में एंड अप नहीं करना चाहते जहां पे आप एक हाफ बेक ट्रीटमेंट शुरू करें और मरीज काउंसल ना हो, वो दवाई बंद कर दे, हेपेटाइटिस का फ्लेयर हो रहा हो या
आर्थराइटिस खराब हो रहा हो, तो ये सब चीजें हैं। और अगेन बी केयरफुल, जो हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, मीथोट्रेक्सेट एक है, लेफुलिनामाइड भी लिवर को अफेक्ट करती है। बुशरा, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी? हम DMRDs के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं और हेपेटाइटिस के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरीज में कौन कौन सी दवाइयां आपके ज़हन में आती हैं? और आपने दो तो मेंशन कर दिए हैं, मीथोट्रेक्सेट एंड लेफुलिनामाइड। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी बहुत ज्यादा लिवर फ्रेंडली नहीं है, एंड एट टाइम्स इफ द ALT इज नॉट कमिंग बैक टू नॉर्मल, वी हैव टू स्टॉप HCQ आल्सो। और उसके अलावा ये हमारे जो डॉक्टर साहिबान नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरीज बहुत ज्यादा देते हैं, और कॉल्चिसिन भी कभी कभी, it's very rare to find colchicine in their treatment regimen, but if it is there, it has to be taken with caution by keeping an eye on the ALTs. इस सिनारियो को डॉक्टर असद, जहां हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं, तो इस सिनारियो को एज अ जनरली वो ले लें, ये एक एग्जाम्पल है जहां हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स यूज कर रहे हैं। जी जी, डॉक्टर अली, आप कुछ कह रहे थे? मेरा ख्याल उनका नेट डाउन हो गया सर। हाँ, नेट डाउन हो। अच्छा सर, ये मैं एक एक्सक्यूज मी, सॉरी सर, मुझे वो जी नहीं जी थोड़ा सा समझ आई कि वो फाइनल क्या हुआ था कि उसके साथ हमने स्टीरॉयड मेथोट्रेक्सेट के साथ ये इसका हेपेटाइटिस बी का भी ट्रीटमेंट शुरू करना साथ ही, या नहीं करना? जी, इसमें ये है कि मीथोट्रेक्सेट शुड बेस्ट बी अवॉइडेड। आप रूमेटोलॉजिस्ट के साथ इन टच रहें। स्टीरॉइड्स अगर लो डोज में हैं तो वी कैन वेट एंड वॉच, हम DNA और LFT फॉलो करेंगे। अगर स्टीरॉइड हाई डोज में जा रहे हैं 20 मिलीग्राम और उसको लंबे अरसे के लिए, तो फिर हम हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट, जिस तरह बुशरा ने कहा कि टेनोफोविर एलाफिनामाइड जो है विल बी अ बेटर ऑप्शन। अगर हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमने इसको ऑब्जर्वेशन पे रखना है, तो मैं 3 महीने बाद इनका हेपेटाइटिस बी DNA क्वांटिटेटिव चेक करके देखना चाहूंगा कि क्या सूरत हाल है। लेकिन अप फ्रंट हाई डोज स्टीरॉइड्स मोर देन 20 मिलीग्राम फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन अगर हमें नजर आ रहा है, तो फिर हमें ट्रीटमेंट को सीरियसली कंसीडर करना पड़ेगा। I think it's about time that we move to the next case. Uzair, who is going to present the next case? Dr. Raj is going to present the next case, and I am going to share the screen. Dr. Raj, yes, please. The second case is a 39-year-old male presented with HBs antigen positive incidental finding in 2018. He had no active issue. He was non-diabetic and non-hypertensive. He has been on follow-up ever since. On examination, abdomen was soft and non-tender. Chest was bilaterally clear. And in his family history, sister had HCV positive, and his investigations throughout the follow-up were HB in 2018 was 14.8, TLC 7.9, platelets were 395, creatinine was 0.87, bilirubin was 0.5, ALT, AST were 11 and 23, alkaline phosphatase was 50, gamma GT was 31, albumin was 4.3, and sugar was 83, AFP was 7.5. He was HBe antigen negative and anti-HBe positive, and anti-HDV was positive, anti-HIV was negative, and anti-HCV was negative. HBs antigen was also positive. His HPV DNA by PCR was 158, and in 2019 his LFTs were 0.7 and ALT-AST 1631, and alkaline phosphatase was 62, and
gamma GT was 31 and albumin was 4.4. His HPV DNA, as you can see, was 180. And in 2019, his LFTs were within normal range, and HPV DNA by PCR was 804 international units. In 2020, his LFTs were also within normal range, and anti-HTV was still positive. His HPV DNA was 559, and in October 2020, his LFTs were also within normal range, and his HPV DNA was 1297, and HTV RNA by PCR was not detected. His FibroScan in 2018 was F0, F1 METAVIR score, and his median stiffness was 7.4. In 2020, his FibroScan showed F0, F1 METAVIR score, but the median stiffness was 5.6. And his ultrasound abdomen showed fatty liver, no splenomegaly or ascites, and no SOL. And the questions regarding this case are: how should we counsel this patient? And should we start AVT? Does she need any further investigations? And how frequently should we repeat HTV RNA by PCR? And what should be the course of action if her HTV RNA by PCR is detected? Thank you. थैंक यू औज मेरा सिर्फ एतराज ये है कि ये मेल से शुरू हुआ था और क्वेश्चन पे जाके फीमेल हो गया. No, sir. We have a male patient, Yes. basically E antigen negative disease, and very interesting, very regular follow-up over a span of 2 years. ये आप सब देख रहे हैं. LFTs have remained normal throughout. E antigen negative disease है, E antibody positive है, and Delta virus antibody is positive. Delta PCR was checked in 2020 in October, and that came back is negative. Or there has been a steady rise in hepatitis B DNA levels from 160 nearly to around 1300 units per ml. So E antigen negative, viral load is less than 2000. LFTs are completely normal. FibroScan has been done twice, and liver stiffness is 7.4 kilopascals, 5.6, which corresponds to F0, F1 as there is no family history of liver cancer. One of the sister has hepatitis C. So basically, आपके सारे questions revolve करते हैं, how are we going to go about this case? जी बुशरा, very interesting. आप क्या कहना चाहेंगी? जी. This patient has co-infection with hepatitis D and hepatitis B, and since the hepatitis D part is negative, we will not be paying attention to it. As far as hepatitis B is concerned, because of the continual presence of normal ALT, this patient is not a candidate for treatment, especially since there is no fibrosis on FibroScan. So पहला क्वेश्चन यही है, और ट्रीटमेंट के बारे में क्वेश्चंस दिखा दें जरा उजैर भाई. हाँ, काउंसलिंग है. Counseling of this patient is important because, again, 39-year-old hai. He needs to understand that although there is a steady rise in the viral load, the ALT has not shown an increased level. So because of this, he is still not a candidate according to the EASL guidelines. But yes, we will keep an eye on the hepatitis B viral load. And if it goes more than 2000 and the patient's ALT also rises to at 2 consecutive occasions, he will be a candidate for treatment. As far as the वो फिर से जरा question दिखा दें. डेल्टा वायरस को किस तरह फॉलो करेंगी आप? डेल्टा वायरस का फॉलो अप उसी तरह होता है जैसे हेपेटाइटिस बी का होता है, every 6 months. मैं बुशरा
honestly speaking, इस केस में he is around 40, 2 साल हो गए हैं, and very regular follow up, which is very impressive. आपको एक उसका flow मिल रहा है labs का. I am itching to go for a liver biopsy. आपका क्या ख्याल है अगर मान जाते हैं तो? Acha, a liver biopsy will, you can never say no to a liver biopsy. I cannot say that no, this patient does not need one, because there is a fatty liver that is involved. आप biopsy करवा लें, but if in that case necroinflammation अगर मिलती है तो फिर treatment का ये candidate definitely है. लेकिन ये patient आपका regularly आ रहा है, there is no problem with compliance and follow up. तो इसलिए अगर ये इस चीज के ऊपर मान जाते हैं कि रेगुलरली दिखाते रहेंगे और जब तक ईजल के क्राइटेरिया पूरे नहीं हो जाते हैं. दूसरा, यस, इफ ही एग्रीज तो आज ही लिवर बायोप्सी हो जानी चाहिए है, और नेक्रो इन्फ्लेमेशन मिलने पर ही विल बी अ कैंडिडेट फॉर ट्रीटमेंट. और इस केस में हमें रेगुलर अल्फा फीटोप्रोटीन करना चाहिए अल्ट्रासाउंड के साथ कि वी आर गुड विदाउट इट? जी, definitely so. Hepatitis B without the presence of cirrhosis remains a risk factor for hepatocellular carcinoma. Alpha fetoprotein and ultrasound every 6 months hoga. There is this question in the chat this patient is currently in inactive carrier. जी, I will agree with it. अब जो नई nomenclature है, this will be hepatitis B E antigen negative chronic infection. तो जो कि हम इसको inactive carrier भी कहते हैं. तो लेकिन मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, I'm very wary about these patients. मैं लिवर बायोप्सी की जरूर बात करूंगा और हो सकेगा कि इसको शायद पुश भी करूं कि वो लिवर बायोप्सी कराए. और I will probably have a low threshold towards treating the patient. जी, there is one question from, let me, उजैर, ये एक डेल से आ रहा है, मैसेज आया है, उनको अनम्यूट करेंगे आप? जी, प्लीज इंट्रोड्यूस. Yes, Dr. Ali Haider is over there. ओके. जी, वालेकुम सलाम. सॉरी, नेट के इशू की वजह से मैं डिस्कनेक्ट हुआ था. दोबारा मोबाइल से जो है वो कनेक्ट हुआ हूँ. तो इसमें डिस्कशन तो आप लोगों ने कर ली एंटीवायरल ट्रीटमेंट की. डेफिनेटली एट प्रेजेंट तो ज़रूरत नहीं है, मगर इस पेशेंट के जो रेगुलर फॉलोअप है, लिवर बायोप्सी जो है, मेरा नहीं ख्याल कि इस पेशेंट को ज़रूरत है, क्योंकि परसिस्टेंटली उसके एएलटी जो है वो नॉर्मल हैं. और नो डाउट जो DPCR है क्वांटिटेटिव, वो डे बाय डे डी का जो PCR है वो डे बाय डे रेज कर रहा है. डी तो नॉट डिटेक्टेड है. आई थिंक रेगुलर फॉलोअप जो है इस पेशेंट का बहुत ज़रूरी है. जैसे आप इस केस में अगर आप और भी रेगुलर फॉलोअप के लिए देखें तो सरफेस एंटीजन क्वांटिफिकेशन जो है वो हेल्पफुल होगी इस पेशेंट में, कि हमने कब इनका जो है इन्वेस्टिगेशन फर्दर ALT कब करवाना है, DNA लेवल कब रिपीट कराने हैं. क्योंकि आप देखें तो सिनेरियो में एवरी 6 मंथ इनका जो है फॉलोअप राउंड अबाउट होता रहा है लास्ट 2 years में. तो सरफेस एंटीजन अगर क्वांटिफिकेशन करा ली जाए और अगर वो लेस देन 1000 है, तो आप एवरी 6 मंथ इनकी जो है 6 to 1 year पे आप ALT रिपीट करा लें. एवरी ईयर 2 year आप इनका जो है PCR करवा लें, क्वांटिफिकेशन करा लें B का. अगर वो मोर देन 1000 है इंटरनेशनल यूनिट सरफेस एंटीजन लेवल, तो एवरी 3 मंथ आप इसको जो है ALT लेवल रिपीट कराएं, और 6 मंथ 1 year पे आप DNA लेवल और फाइब्रो स्कैन जो है वो आप रिपीट कराएं. अल्फा फीटोप्रोटीन और अल्ट्रासाउंड एब्डामिन
फॉर हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा वो एज सच रेगुलर फॉलोअप इनका रहेगा जिस तरह दूसरे पेशेंट्स का होता रहता है। जी जी डॉक्टर अली, एक क्वेश्चन मैंने डॉक्टर बुशरा से पूछा था, आपका भी एक्सपीरियंस सिंध का काफी है। डेल्टा वायरस को आप कैसे फॉलो करना चाहेंगे? ये एंटीबॉडी 2 दफा पॉजिटिव आई है और एक दफा हमने चेक किया तो डेल्टा वायरस नेगेटिव था, आरएनए जो है। जी अगेन इसमें जो इम्पोर्टेंस आ जाती है वो एएलटी मॉनिटरिंग का आ जाता है। एएलटी आप मॉनिटर करते रहें और डीएनए बी का लेवल मॉनिटर करते रहें, फाइब्रो स्कैन करते रहें। अगर एएलटी रेज आता है आपका पहले से बढ़ा आता है तो देन यू हैव सस्पेक्ट कि इसको हो सकता है डी एक्टिव हो रहा हो, डी सुपरसीड कर रहा हो। तो उसमें तो आपने फिर डी का जो है उस वक्त जब एएलटी लेवल बढ़ जाता है तो उस वक्त तो आपने करवाना ही करवाना है रिपीट क्वांटिफिकेशन डी के लिए भी। अगर एएलटी परसिस्टेंटली नॉर्मल आता है तो आई थिंक लाइक डी का पीसीआर है 1 ईयर 2 ईयर, जो गाइडलाइंस में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है पीरियडिक, लफ्ज लिखा हुआ है पीरियडिक, आप डी का जो है पीसीआर कराते हैं। अब वो पीरियडिक से मुराद कोई टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ, मगर 1 to 2 ईयर आई थिंक इज सफिशिएंट कि आप, मगर जब एएलटी बढ़ जाए तो फिर तो उसी वक्त ही रिपीट कराना चाहिए। जी थैंक यू। There is a question or comment in the chat, Dr. Bushra, about other investigations about non-alcoholic fatty liver disease, जिसमें blood sugar, BMI, lipid profile, तो उसके बारे में आप क्या कमेंट देंगी कि ये रूटीन में हमें करवाना है? आप BMI should be a part of the physical examination. फैटी लिवर अल्ट्रासाउंड पे है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो रूल आउट हो जाना चाहिए है, लेकिन फिब 4 स्कोर का नहीं, अब तो फाइब्रो स्कैन है ना हमारे पास, और एंड वी आर आल्सो गोइंग फॉर ए लिवर बायोप्सी, तो इसलिए शायद वो जो नॉन इन्वेसिव मार्कर्स हैं उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना हो। But yes, when you find a fatty liver, you have to rule out metabolic syndrome. Dr. Ali, there is another question ke let's assume ke patient has co-infection जिसमें he qualifies for treatment for hepatitis B and delta RNA is also positive. So the question is about starting PEG interferon and anti-HBV therapy. Question ये है कि PEG interferon plus nucleoside analog और PEG interferon alone for this. आप क्या कहेंगे? जी वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें जो ओपिनियन है वो यही है कि अगर हेपेटाइटिस बी का डीएनए लेवल लेस देन 2000 है then you have to treat hepatitis D virus with pegylated interferon. मगर अगर हेपेटाइटिस बी का लेवल डीएनए क्वांटिफिकेशन मोर देन 2000 इंटरनेशनल यूनिट है then you have to add nucleoside analog as well with pegylated interferon. और pegylated interferon जैसे आप लोग जानते हैं कि 48 वीक्स के लिए है और जो है कन्वेंशनल का इसमें कोई रोल नहीं है। तो डीएनए लेवल बी का 2000 कट ऑफ वैल्यू जो है वो डिसाइड करता है कि आपने न्यूक्लियोसाइड एनालॉग देना है या नहीं देना। जी Okay, thank you very much. Any other question or comment? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और जी सर, मेरा एक सवाल था। आप डिसाइड इस पेशेंट का किया है भी उसकी वापसी होनी चाहिए, तो वापसी से पहले मैंने डिसाइड नहीं किया,
मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था, आई वुड बी इचिंग टू गो फॉर लिवर बायोप्सी, क्योंकि आई मीन समटाइम्स आपका पर्सनल एक्सपीरियंस आपको इस तरफ लीड करता है. As far as guidelines are concerned, E antigen negative chronic infection है, जिसमें it will be fair to monitor this patient. लेकिन for some reason मुझे थोड़ा डर ज्यादा लगता है, तो मैं बायोप्सी को जरूर डिस्कस करता हूं जब मैं 2 साल से फॉलो कर रहा हूं इस पेशेंट को, and I just want to be sure कि हम कोई चीज मिस नहीं कर रहे. That's why I mentioned biopsy. जी सर. मैं ये कहना चाहता हूँ, बायोप्सी से पहले उसका आप सीटी स्कैन क्यों नहीं करवाते? CT उसकी scan इन्फ्लेमेशन CT देखने के scan लिए में आप क्या उसका लेवल देखना क्या है? चाहेंगे? नहीं, आप मैक्रो CT scan में क्या देखना? इन्फ्लेमेशन या उसका कोई फॉर्मेशन बन रही हो, नोड्यूल वगैरह या हेपेटाइटिस सेलुलर कार्सिनोमा, इस तरह की चीजें. जी देखिए, नेक्रोसिस का लेवल, फाइब्रोसिस का लेवल पता चल जाएगा. जी फाइब्रोसिस के लेवल के लिए जो CT स्कैन है वो तो कोई अच्छी टूल नहीं है. फाइब्रोस्कैन या शेयर वेव इलास्टोग्राफी, दे आर वेरी गुड टूल्स, तो CT स्कैन उसके लिए नहीं कराएंगे. CT स्कैन हम सिर्फ उस वक्त करेंगे अगर कोई नोड्यूल आता है अल्ट्रासाउंड में जहां पे हमें शक हो कि ये लिवर कैंसर ना हो, तो वो उसके पर्टिकुलर फीचर होते हैं जिसमें आर्टीरियलाइजेशन होती है और पोर्टल वीनस वॉश आउट होता है, जिसको हम देखना चाहते हैं. इस केस में अल्ट्रासाउंड इज एनफ. और फाइब्रोस्कैन जिस तरह हमने जिक्र किया, आपके पास दूसरे टूल्स हैं, एप्री है, FIB-4 है, आप उनसे भी अंदाजा लगा सकते हैं ये पेशेंट कहाँ पे फॉल करता है. बुशरा, ये एक और सवाल है कि एनी ओरल ड्रग्स फॉर डेल्टा वायरस अवेलेबल इन पाकिस्तान? नहीं, अभी नहीं. अभी एक रिसर्च टूल है, वो अभी मायरक्लूडेक्स के नाम से अभी तो रिसेंटली अप्रूव हुआ है, लेकिन अभी पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल हुआ. थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चन? And we have Dr. Farooq from Habsabad. He is a busy practitioner there. Farooq, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? आप जी थैंक यू सर. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सर मैंने अक्सर देखा है कि एक दफ़ा शायद आपसे प्रोफेसर अल्ताफ साहब थे, तो उनके साथ भी डिस्कस हुआ था. एक डॉक्टर साहब जो मेरे जूनियर थे, उनका डेथ हुई थी डेल्टा वायरस और हेपेटाइटिस बी से, जिनका फिर लिवर ट्रांसप्लांट भी हुआ, वो सक्सेसफुल ना रहा. तो ओवर द पास्ट 1 or 2 years डेल्टा वायरस के तकरीबन मैंने देखे हैं कोई 5 या 6 केसेस. तो उसमें तकरीबन 50% जो थे वो PCR नेगेटिव था, और दे वर लकी इनफ, और उनको फिर फॉलोअप एडवाइस किया गया, लेकिन वो फॉलोअप पे नहीं आए. तो इस तरह के पेशेंट, जिस तरह हमारा पाकिस्तान में सिचुएशन है कि वो PCR फॉलोअप नहीं का स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, या जिस तरह वो पेशेंट स्लिप हो जाते हैं और नेक्स्ट टाइम फिर वो आते हैं विद फुल ब्लोन सिरोसिस, तो इसके लिए हमें क्या काउंसलिंग करनी चाहिए? जी काउंसलिंग तो आप करते हैं, मरीज नहीं आते. बुशरा, आप कुछ कहना चाहेंगी रिगार्डिंग दिस सेगमेंट? पेशेंट्स आर नॉट कमिंग फॉर फॉलो अप, और कुछ सालों बाद दे कम विद लिवर सिरोसिस, और तो उस सूरत में हम कैसे इस सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं? जी डॉक्टर फारूक सही कह रहे हैं. मेरा ख्याल है हम सभी इस तरह के पेशेंट्स को, हम सब वी ऑल कम अक्रॉस सच पेशेंट्स, क्योंकि जो कि बताया हुआ होता है या नहीं भी बताया हुआ होता, तो उनका दे एंड अप विद ए कॉम्प्लिकेशन दैट वी हैड ऑलरेडी वार्न्ड देम अबाउट. ये हेपेटाइटिस बी नहीं, तमाम क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट से ताल्लुक है इस बात का. The only answer is sitting down with the patient and explaining things to them in detail.
ये ठीक है कि बहुत सारा पेशेंट की इंटेलेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन अभी कल मैंने एक पेशेंट देखा है हेपेटाइटिस बी और साथ में उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी था, मेरे पास रूमेटोलॉजिस्ट ने भेजा था। व्हेन आई एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम, ही टोल्ड मी, अब मैं नहीं जानती हूँ कि कितना उसमें सच था। उन्होंने मुझे कहा कि जो आपने मुझे सब कुछ ये समझाया है, इंक्लूडिंग इन्वॉल्विंग माय वाइफ एंड चिल्ड्रन इन द स्क्रीनिंग एंड वैक्सीनेशन, ये तो मुझे मेरे डॉक्टर साहब ने नहीं बताया। ऑन ए सिंगल हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन रिपोर्ट, सरगोधा से पेशेंट था, ही वाज स्टार्टेड ऑन टेनोफो-B 2 years ago, और वो नॉन कंप्लायंट भी थे, बीच में छोड़ देते थे। तो इसलिए इस मसले का हल काउंसलिंग है। यू हैव टू सिट एंड काउंसल द पेशेंट अकॉर्डिंगली, वरना फिर पेशेंट के लिए मुश्किल हो जाती है। फिर इसी तरह से ही होता है, अगर आपने उसको वार्न ही नहीं किया हुआ और उस चीज़ को डॉक्यूमेंट करें अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे कि मैंने इसको कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हेपेटाइटिस बी समझा दिए हैं, तो फिर आप ये बाद में हम कंप्लेन भी नहीं फिर कर सकते ना, क्योंकि हम लोगों ने अगर टाइम नहीं स्पेंड किया तो फिर मरीज को तो हमने नहीं। हमारे इतने ज़्यादा मिथ्स हैं अगर लिवर की डिजीज़ेस के बारे में ख़ास तौर पे, कि हमें उसके खिलाफ फाइट करने के लिए हल यही है कि हम थोड़ा सा वक्त और लगा लें पेशेंट के साथ। थैंक यू। हम लोग आप बड़ी जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देयर इज अ पेपर जिसमें मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व रहा हूँ ऑन लिवर इंडेक्स स्टडी के लोगों की कितनी अंडरस्टैंडिंग है लिवर डिजीज इन पाकिस्तान के बारे में। और बाय द वे पाकिस्तान इतना बुरा बिहेव है, 15 मुल्कों का डेटा है वो। एट सम स्टेज इट विल बी नाइस टू शेयर विद यू। अभी वो चूंकि उस पे एम्बार्गो है तो मैं आपको बहुत डिटेल बता नहीं सकता। Anyhow, any other question? Otherwise, it's about time till we meet next time. I will be very grateful. मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप अपने केसेस जरूर भेजें। ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग केसेस है, क्योंकि इसी तरह फिर हम सब लोग लर्न करते हैं। एंड व्हाट ECHO can do is to bring faculty on board, ताकि वो आपके साथ आपको फीडबैक दे सकें। तो if there is no other question, तो I would hand over to Uzair. Sir, जी फारूक sir, कुछ sir, can we plan some? We have eminent gastroenterologists in our sessions, so can we plan some discussion apart from liver, like H. pylori infection or like this, you know? जी उसमें ये होगा कि वी कैन डू दैट। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम इसको उसी से रखेंगे। बट आई वुड लाइक कि अगर इस तरह का कोई केस अगर आप शेयर कर दें, तो वो हम ये करते ये हैं कि उस केस को अगर कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो आपसे लेके देन वी कैन गेट अ फैकल्टी टू डिस्कस दैट केस, जो हमारे केस बेस्ड डिस्कशन में है। जो दूसरा आपकी बात है कि हमारा एक प्रोग्राम है जो कि अब जल्दी शुरू करने का प्रोग्राम है, वो है एक GI ECHO, जिसमें ये जो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें डिस्पेप्सिया, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, गैस और इस तरह की चीजें हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसको हम टेकअप करना चाहते हैं इन आवर ECHO सेशन। वो उस पर थोड़ा काम हो रहा है। कुछ कोविड की वजह से आपको पता है चीजें आगे पीछे हो रही हैं, बट वी आर गोइंग टू डू दैट। लेकिन अगर आप मुझे केस फॉर्म में भेज देते हैं इस तरह का कोई भी GI से रिलेटेड केस, तो वी कैन पुट दैट अप। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये केस बेस्ड डिस्कशन हेपेटाइटिस के अलावा हो नहीं सकती। वी कैन डेफिनेटली टेक दैट अप। जी Thank you so very much, sir. जी Uzair, over to you. Thank you very much, sir. At the end of this session, it remains on me to thank our panelists, Dr. Bushra Ali and Dr. Ali Haider, our project director, Dr. Asad Chaudhary, our project administrator, Mrs. Kiran Amir, and project lead Payam, Dr. Amna Askar, and my colleague Haris. And thanks all of you too for joining this session. Till next time, Allah Hafiz.